بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلافات کس بنیاد پر ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل جب حضرت عثمان نے مولا علی علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے اور محاصرین سے نجات دلوانے کے لیے قاصد کو بھیجا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کی مدد کیوں نہ کی اور ان کو محاصرین کے حملے سے کیوں نہ بچایا؟ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت کی خبر دی گئی اور حضرت زبیر بن عوام نے حضرت علی کو سید عثمان کا جنازہ پڑھانے کے لیے کہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا اور ان کا جنازہ کیوں نہ پڑھایا؟ بہت سی ضعیف روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت میں ملوث تھے، اور بھی بہت سے صحابہ کرام خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کی شہادت میں ملوث تھے۔ اس کے بارے میں تاریخی حقائق کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے۔ انہوں نے درکدس پر دستک دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، دروازے پر جو بھی ہے اسے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جو دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی آ کر اجازت چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو بھی دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے، لیکن تکالیف، آزمائشوں اور فتنوں کے ساتھ۔ محترم ساتھیوں، اس حدیث سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو پہلے ہی ان فتنوں اور تکالیف سے آگاہ کر دیا تھا جو ان کی خلافت کے دوران ان کے ساتھ پیش آئیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ پالیسیوں کی وجہ سے بہت سے صحابہ اکرام ان کی خلافت سے ناراض تھے، جن میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر بھی شامل تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم طبیعت کی وجہ سے ان کا سیاسی طور پر اسلامی سلطنت پر کنٹرول کمزور تھا، اور اس کے علاوہ اس سے کچھ اجتماعی غلطیاں ہوئیں جن کی وجہ سے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ بات ان کی شہادت تک جا پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، یعنی حضرت عمر کی شہادت کے فوراً بعد میری امت فتنوں اور آزمائشوں میں گھر جائے گی، اور وہی ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے خلافت فتنوں اور آزمائشوں میں گری ہوئی ملی، جس کے کا بوجھ وہ اپنے کاندھوں پر اٹھانے میں کسی حد تک ناکام بھی رہے، کیونکہ ان کی خلافت کے دوران مدینہ منورہ پر اسلامی سلطنت پر باغیوں اور منافقین کا غلبہ زور پکڑ گیا۔ اس کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنٹرول کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ملعون مروان بن حکم اور اس کے باپ کو مدینہ سے باہر نکالا تھا، حضرت عثمان غنی اپنے رشتہ داری کی بنا پر ان کو مدینہ منورہ لے آیا، جس سے اور بھی بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ سے باہر نکال دیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو واپس مدینہ منورہ بلایا۔ یہی وجہ تھی کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر نے شہادت عثمان سے کچھ لمحات قبل سیدنا عثمان کے گھر میں گھس کر ان کی داڑھی کو پکڑا، اس کو کھینچا اور کہا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تبدیل کیا، اور یہ کہتے وہاں سے باہر نکل گئے۔ یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ایسے اجتماعی خطائیں ضرور ہوئی ہیں جس سے صحابہ اکرام علیہ اجمعین ان کے خلاف ہوئے، اور جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سے صحابہ اکرام علیہ اجمعین کے گھروں کا بھی محاصرہ کیا گیا، اور ان صحابہ اکرام کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی اپنے گھر کا محاصرہ ہونے کے بعد مولا علی علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے قاصد
बुलाया तो मौला अली अलैहिस्सलाम चाहते हुए भी इन महासरीन के महासरे से निकल कर सैयदना उस्मान गनी की मदद के लिए ना जा सके। अलबत्ता आपने अपने साहबजादे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सैयदना उस्मान गनी के घर के दरवाज़े पर मुहाफ़िज़ के तौर पर मुकर्रर किया, जो कि सैयदना उस्मान के घर की हिफाजत करते हुए शदीद ज़ख्मी भी हुए, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना उस्मान गनी से बुग़्ज़ और अना और दुश्मनी नहीं रखते थे, और ना ही आप हज़रत उस्मान गनी की शहादत में मुलव्विस थे। अगर आप ऐसा होता तो हज़रत अली कभी भी अपने साहबजादे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को सैयदना उस्मान गनी के दरवाज़े पर मुहाफ़िज़ मुकर्रर ना फरमाते। मोहतरम साथियों, हज़रत अली और हज़रत उस्मान गनी दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, और हज़रत उस्मान के निकाह में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक के बाद दीगर दो साहबजादियाँ हैं, जिसकी वजह से इनको ज़ुल्नूरैन यानी दो नूर वाला भी कहा जाता था। सैयदना उस्मान गनी मौला अली अलैहिस्सलाम से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दमादी का शरफ़ पा चुके थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सबसे छोटी साहबजादी सैयद फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए मुबारक रिश्ते की तलाश थी। सैयदना अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझते थे कि पैगंबर की दामादी के लिए हज़रत अली से बेहतर कोई रिश्ता नहीं, लिहाजा उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ते के मुतालिक बात करने पर आमादा किया। जब यह रिश्ता तय पा गया तो वाज़ेह बात है कि शादी के लिए अखराजात की ज़रूरत थी, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माली हालत इस कदर कमज़ोर थी कि हक़ महर तक अदा करने की फ़ुर्सत न थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि तुम्हारे पास महर देने के लिए कुछ है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक ज़िर्रा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़िर्रा को बाज़ार में बेच कर आओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महर की अदायगी के लिए जब अपनी ज़िर्रा बेचने निकले तो हज़रत उस्मान गनी ने अपने जुल्फ़ हज़रत अली से 400 दिरहम में वो ज़िर्रा ख़रीद ली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ज़िर्रा फ़रोख्त करके जाने लगे तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो ज़िर्रा भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हदियतन वापस दे दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत उस्मान गनी से पहले ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 400 दिरहम हदियतन क्यों न दे दिए? पहले ज़िर्रा ख़रीदी फिर हदिया को दी, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह यह थी कि हज़रत उस्मान सैयद फ़ातिमा की अज़मत को बरकरार रखते हुए चाहते थे कि महर फ़ातिमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अपने माल से अदा हो, इसलिए पहले ज़िर्रा ख़रीदी। अब ये माल हज़रत अली अलैहिस्सलाम का अपना था। बाद में तोहफ़तन ज़रा भी वापस दी। हज़रत अली से रिवायत है कि हज़रत उस्मान ने ज़िर्रा भी हदिया में दे दी। माल और ज़िर्रा लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उस्मान गनी ने जो कुछ किया इनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। आपने उस्मान के लिए दुआ खैर फरमाई। हज़रत उस्मान गनी हज़रत अली को एक ऊँटनी बतौर सवारी की हदिया दी। हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अली आए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक ऊँटनी थी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये ऊँटनी कहाँ से आई है? तो हज़रत अली अर्ज़ करने लगे, ये मुझे हज़रत उस्मान गनी ने सवारी दी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर अच्छे मौक़ों पर अपने हमजुल्फ़ भाई हज़रत अली अलैहिस्सलाम को याद रखते थे। वो उस्मानी में वली ताइफ ने चिकोर और कुछ और शिकार करदा परिंदा से अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी की पर तकल्लुफ़ दावत की, और आप पर तकल्लुफ़ दावत देख कर हज़रत अली याद आए गए। आपने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए आदमी भेजा तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इसे फरमाया कि मैं एहराम की हालत में हूँ, लिहाजा ये शिकार इन लोगों को खिला दें जो महरम नहीं है, इसलिए कि महरम के लिए शिकार का गोश्त खाने की इजाज़त नहीं है। इसलिए वाक़या से पता चलता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत अली अलैहिस्सलाम से किस कदर अंसर मोहब्बत थी। इस्लाम हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस इलाके से फातिहा होकर मदीना मुनव्वरा आए तो आपने सब मदीना वालों को 3-3 हज़ार दिरहम भिजवाए, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी 3000 दिरहम भिजवाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब इसका हुक्म इल्म हुआ तो आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर से नाराज़ होते हुए फरमाया कि अली के साथ ये सलूक। आपने फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को 20,000 दिरहम और कुछ दीगर ताइफ भेजे, जिनको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कबूल फरमा लिया, और साथ ही हज़रत अली से हज़रत उस्मान ने माजरत भी की।
بعض तबकात तरीक़ का सहारा लेकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एतराज़ करते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा देते थे, लेकिन ये नहीं बताते थे कि हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम को भी हम जुल्फ़ होने के नाते ज़्यादा हिस्सा देते रहते थे। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से भी आपका मामला एहसान और इकराम का होता था। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत हसन नो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन से बहुत एज़ाज़ व इकराम वाला मामला किया करते थे और इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। ये एज़ाज़ व इकराम महज भतीजे होने के नाते नहीं, बल्कि इस ऊंची निस्बत और शान की वजह से था जो हुसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी, क्योंकि आम तौर पर छोटे बड़ों के साथ एज़ाज़ इकराम वाला मामला करते थे, बड़े छोटों के साथ नहीं। इस तरह आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ओहदा सआदत में हाशमियों की ख़ानदानी निस्बत का ख़ास ख्याल रखते हुए इन्हें भी मुख्तलिफ औक़ात में तोहफ़े देते रहते थे। जब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया तो इस वक्त इस कत्ल के चश्मदीद गवाह सैयदना उस्मान गनी की अहलिया नाइला थी, जिससे कातिलीन के नाम के बारे में दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने सिर्फ मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की तस्दीक की कि वो शहादत से कुछ लम्हात कबल सैयदना उस्मान गनी के पास मौजूद थे, लेकिन शहीद करने वाले अफराद में वो शामिल ना थे, बल्कि शहीद करने वाले 3 अफराद कोई और थे जिनको वो जानती न थी। जब सैयदना उस्मान गनी का जनाजा तैयार हुआ तो सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इत्तला दी और इन्हें सैयदना उस्मान गनी का जनाजा पढ़ाने की दरख्वास्त की, लेकिन सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरख्वास्त की कि सैयदना उस्मान गनी का जनाजा वो खुद पढ़ाएं, क्योंकि हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उम्र में बड़े थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत इज़्ज़त और तौक़ीर किया करते थे, क्योंकि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फुफाजाद भाई थे। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम को ही जनाजा पढ़ाने की ताकीद की और ख़ुद आम मुसलमानों के बीच खड़े होकर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नमाज जनाजा पढ़ा। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को हक़ और सच पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।